Welcome back, students, to my second lecture on electrochemistry. And in the first lecture, I have left with you by giving you one of the question that what is the relationship between Simon meter square per mole and Simon centimeter square per mole, and the relationship goes as now it is 10 to the power 4 times Simon centimeter square per mole. The students who have got it correctly, take a thumbs up from yourself. Okay. अब आते हैं स्टूडेंट, वन मोर रिलेशनशिप दैट यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेल फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल इज स्टूडेंट relationship between Simon per meter and Simon per centimeter, and the relationship goes as 10 to the power minus 2 Simon per centimeter times. ठीक है, तो ये दोनों रिलेशनशिप आपको बढ़िया से याद रखना है स्टूडेंट, बिकॉज नाउ एंड देन इट विल बी यूटिलाइज्ड इन सॉल्विंग क्या यहां पर न्यूमेरिकल्स. ओके, सो दीज आर योर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये दिमाग में रखिएगा. ठीक है, ये दोनों रिलेशनशिप दिमाग में रखना. ना स्टूडेंट, बिफोर गोइंग इनटू द proceeding of our numerical, what we have discussed in the last class, let us quickly recap, then only we can move into the relationship. What the things that we have discussed in the last lecture, that resistance reciprocal is conductance, I have no problem, its unit, everything has been given, सब कुछ याद होना चाहिए. Next student, I have got the resistivity, and student the reciprocal of it is conductivity. ये भी हमने देखा था, it is denoted by kappa k. And student, further we have derived the relationship that kappa is equal to conductance into cell constant. सेल कांस्टेंट क्या है पूरा बढ़िया से डिस्कस कर दिए थे. ठीक है, फाइन, इट इज द रेशियो ऑफ एल बाई ए, सब जानते ही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ना स्टूडेंट, फर्दर इफ आई गो, यहाँ पर आई हैव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी. इसका डेफिनेशन का आज बहुत बड़ा रोल है, हम लोग देखेंगे क्या रोल है. नेक्स्ट स्टूडेंट, विद दीज फॉर्मूले वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन द फॉर्मूला, and the concept that I have derived, that one was named as molar conductivity, and it is given by the symbol capital lambda. ठीक है, fine. So the formula, definition, everything told. Next student, the derivation was found to be lambda is equal to kappa into 100 by concentration, 1000 by concentration, and student unit will go Simon centimeter square per mole, yeah, Simon meter square per mole. Now student, one more thing that will be understood over here, the relationship between them. ये भी मेरा हो सकता है स्टूडेंट साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ये भी हो सकता है यहां पर. ठीक है, लेकिन हमको सारा काम करना है सेंटीमीटर में. क्यों ना, ये वाला चीज मैंने पूरा सेंटीमीटर में किया है, इसीलिए प्रीवियस में भी मैंने यूनिट जो भी यूज किया वो क्या यूज किया था, सेंटीमीटर. सो आई हैव नो प्रॉब्लम टिल हियर. अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं विथ lecture number 2 of electrochemistry, where I will solve numericals on the topic that I have discussed. ठीक है, so student, this is lecture number 2, and at the top you will also write in your copy that during numerical always keep the unit in क्या, सेंटीमीटर. सारा चीज आपको सेंटीमीटर में रखना है, ये चीज दिमाग में रखना. ठीक है, फाइन. अगर तुमको डेटा मीटर में है दिया हुआ रहेगा, यू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर, देन यू यूज द फॉर्मूला, सॉल्व इट, देन अगेन यू कैन गेट बैक टू द यूनिट मीटर. तो ये चीज दिमाग में रखिएगा while solving the numerical portion. Now let us start with the first numerical. पहला न्यूमेरिकल से शुरू करता हूं. क्या लिख रहा है पहला न्यूमेरिकल? What the first numerical is saying? The resistivity of 0.8 molar solution of electrolyte is 5 into 10 to the power minus 2 ohm centimeter. ओम सेंटीमीटर. ठीक है, कैलकुलेट लैम्डा, ये मेरा सवाल है. तो स्टूडेंट क्या बोल रहा है यहां पर ना, रेजिस्टिविटी हैज बीन गिवन. ठीक है, रो हैज बीन गिवन टू यू. व्हाट आर द थिंग्स दैट हैज बीन गिवन टू यू? लेट मी राइट इट. रो हैज बीन गिवन टू यू. ठीक है, रो आपको दिया हुआ है. नेक्स्ट स्टूडेंट, आपको क्या दिया हुआ है ना, कॉन्सेंट्रेशन हैव बीन गिवन टू यू, ये दिया हुआ है यहां पर. एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग टू कैलकुलेट व्हाट स्टूडेंट, द कैपिटल लैम्डा. व्हाट इज द फॉर्मूला दैट आई हैव गॉट फॉर कैपिटल लैम्डा ना, इट इज के इनटू 1000 बाय क्या, कॉन्सेंट्रेशन. दिस इज द फॉर्मूला दैट आई हैव गॉट विथ मी. अब स्टूडेंट कप्पा मेरे पास नहीं है, बट कॉन्सेंट्रेशन हैज बीन गिवन. वंस आई गेट द वैल्यू ऑफ कप्पा, आई कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ once I get the value of kappa, I can easily get the value of this molar conductivity. तो फिर कप्पा का वैल्यू कहां से मिलेगा स्टूडेंट ना, ये रो से हमको निकालना होगा. ना व्हाट इज द रिलेशनशिप दैट आई हैव गॉट बिटवीन कप्पा एंड रो ना, सर दिस विल, आप बोलोगे सर ये है कंडक्टिविटी एंड इट्स रेसिप्रोकल of resistivity is also referred as conductivity. ठीक है, fine, they are just reciprocal of each other. Now student, 1 by rho has been given to you as 5 into 10 to the power minus 2. फाइन. यूनिट तुम सब जानते हो, साइमन पर सेंटीमीटर ये होगा. यूनिट बढ़िया से याद रखना स्टूडेंट, बोर्ड्स में अगर यूनिट तुमने मिस किया तो तुम्हारा आधा नंबर गया, हम बता के चल रहे हैं यहां पर. ठीक है, रिमेंबर दैट वेरी वेरी वेल.
नाउ स्टूडेंट वी विल गो फर्दर, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट इतना दूर जब मेरा हो गया, अब इसको केवल क्या करना है ना, रिप्लेस करना है। यहाँ पर जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज एंड गेट योर वर्क डन। तो रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर कप्पा में क्या लिख देंगे स्टूडेंट ना, 1/5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1000 बाई क्या हो जाएगा ना, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मेरा कितना है ना 0.8 है, दैट इज माय कॉन्सेंट्रेशन। आई होप नो प्रॉब्लम टिल हियर, सब ओके है, फाइन। नाउ स्टूडेंट वंस आई विल सॉल्व दिस वन स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू एज, बाकी तुम लोग अब सॉल्व कर लेना, यहां पर छोड़ रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, अब सॉल्व कर लेना। यूनिट क्या रहेगा यहाँ पर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, पर मोल, ठीक है। वीडियो पॉज करके स्टूडेंट तो आप सॉल्व कीजिए और फिर मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए, पहले आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज द वैल्यू दैट यू हैव गॉट, 2.5 इंटू 10⁴, यही आया यहां पर, जिसका इसका आया, गेट ए थम्स अप फ्रॉम योरसेल्फ। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट इनटू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है स्टूडेंट, दिस न्यूमेरिकल इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3.5 इन टेक्स्ट सॉल्व्ड क्वेश्चन। व्हाट द क्वेश्चन इज रेफरिंग, ध्यान से तुम लोग देख सकते हो, तुम्हारे किताब में भी है, ठीक है, 3.5 इन टेक्स्ट सॉल्व्ड। क्या ये बोल रहा है स्टूडेंट, वेरी फेमस क्वेश्चन, बहुत बार ये बोर्ड्स में आ चुका है, ठीक है, मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज कम अप इन योर बोर्ड्स। क्या है क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम, ओके, of 0.05 molar NaOH solution, the electrical resistance of a column of 0.05 molar NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is this much ohm. Calculate rho, kappa and molar conductivity. ये हमको पूछ दिया, ठीक है, फाइन ना स्टूडेंट। ये जो हमको दे रहा है डायमीटर, दे आर गिविंग मी डायमीटर, दे आर गिविंग मी लेंथ, दिस सिंबलाइजेज दैट दिस conductivity cell in which the experimentation has been done is a cylinder. That is clear from the numerical, it is a cylinder. So if I get the conductivity cell in the cylindrical form, how I can show that one, ये इस तरह का कुछ conductivity cell है स्टूडेंट, ठीक है, फाइन। Further what they are telling that this diameter has been given to you, diameter has been given to you, d has been given to you as 1 centimeter. So if I get the radius straight away from here, then I will get it is half centimeter, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। तो ये मेरा हो गया हाफ सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट इफ आई गो फर्दर, ये मेरा कंडक्टिविटी सेल है, ठीक है, फाइन, ये मेरा कंडक्टिविटी सेल इस तरीके से काम कर रहा है यहां पर, क्लियर। नाउ स्टूडेंट व्हाट इज द लेंथ दैट दे हैव टेकन, ये लेंथ कितना दिया हुआ कॉलम का ना, इट इज 50 सेंटीमीटर, लेंथ हैज बीन टेकन एज 50 सेंटीमीटर, ये मेरा लिया हुआ है। इसके अंदर स्टूडेंट जो भी सॉल्यूशन भरा हुआ, द सॉल्यूशन दैट हैज बीन फिल्ड इनसाइड दिस वन is having resistance as student 5.55 into 10⁻³ ohm. कितना लिया हुआ स्टूडेंट ना, 5.55 into 10⁻³ ohm, that is the resistance they are taking. Furthermore, what is the concentration of the solution that has been kept inside this one, it is 0.05 molar NaOH solution. These are the data that has been given to you and the question is asking to find resistivity, then kappa, then rho. So let us start with resistivity. How the formula of resistivity goes student, it's clear to you, कैसे जाता है यहाँ पर ना, resistivity is equal to, क्या था स्टूडेंट if you remember ना, resistivity is equal to, if you remember the formula that goes for this one, यहाँ पर क्या जाता था स्टूडेंट, यहाँ पर ना, resistivity is equal to, you have discussed in the last class, ठीक है, it is R into A by L, तो उसको डाल दो, तुम भी देख सकते हो अपने कॉपी में, ठीक है, फाइन। सो R इज इक्वल टू R इंटू A बाई L, ये मेरा हो गया फॉर्मूला। आई होप नो प्रॉब्लम टिल हेयर। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, लेट मी फिल द वैल्यूज। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5.55 इंटू 10⁻³, दिस इज द वैल्यू दैट हैज बीन गिवन, इंटू एरिया, एरिया ये वाला एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, दिस इज द इलेक्ट्रोड, दिस इज योर इलेक्ट्रोड स्टूडेंट, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोड है यहां पर, इट्स क्लियर कट। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस इलेक्ट्रोड दैट आई विल कैलकुलेट, इफ इट इज ए सिलेंडर यहां पर, तो फिर इट विल बी ए सर्कुलर इलेक्ट्रोड, है कि नहीं यहां पर। तो सर्कुलर इलेक्ट्रोड का क्या हो जाएगा स्टूडेंट ना, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, द लेंथ दैट हैज बीन आल्सो गिवन एज क्या, 50 सेंटीमीटर। यहां तक का मेरा काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसमें सारा चीज फिल कर देंगे। 5 10⁻³ इंटू, ठीक है, पाई का वैल्यू तुम सब जानते हो, यहां पर ये ले लूंगा, रेडियस हैज बीन टेकन एज हाफ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, 50। नाउ स्टूडेंट यू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व योरसेल्फ एंड गेट द आंसर, ठीक है, और फिर बुक इस आंसर के साथ मैच करो और देखो तुम सही सही निकाल रहे हो कि नहीं, ठीक है, फाइन। यू हैव टू डू इट इन योर
बोर्ड एग्जाम एज वेल एज इन योर कंपटीशन। तो आपको खुद ही करना होगा यहां पर और देखना होगा क्या वैल्यू आ रहा है। नो मोबाइल फोन, नो कैलकुलेटर्स, बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अपने से आप कैलकुलेशन करते रहिएगा, तभी जाके तुम्हारा स्पीड और एक्यूरेसी आएगा। नाउ स्टूडेंट, द बुक इज आंसर दैट गोज एज 87.13513। यूनिट क्या होगा स्टूडेंट यहां पर? व्हाट विल बी द यूनिट फॉर दिस वन? वेरी सिंपल स्टूडेंट, देखो ओम और यहां पर सेंटीमीटर, सो ओम सेंटीमीटर इज द यूनिट फॉर दिस वन। कोई दिक्कत नहीं, फाइन। So once I have got the value of rho student, now calculation, next calculation is very easy। मेरा पहला काम हो गया, देखो रो। नेक्स्ट मेरा क्या है ना, कप्पा। कप्पा के लिए मैं क्या करूंगा स्टूडेंट ना, k is equal to 1 by rho means 1 by 87.13 and the value for this one is going to come out to be, कप्पा का जो वैल्यू निकल के आएगा स्टूडेंट वो तुम्हारा वैल्यू होगा ना 0.01148। बुक इस आंसर मैं दे रहा हूं साइमन पर सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ओके फाइन, गुड। तो ये भी मेरा हो गया, सबको समझ में आ रहा है। नाउ लेट अस गो टू द लास्ट वन, दैट इज क्या स्टूडेंट यहां पर ना, ये कैपिटल लैम्डा। तो ये कैपिटल लैम्डा का बारे में क्या करेंगे स्टूडेंट, हाउ आई विल कैलकुलेट दिस कैपिटल लैम्डा, मैं यहीं पर कर दे रहा हूं। कैपिटल लैम्डा का क्या होगा स्टूडेंट, सो दैट वी डू नॉट डिस्टर्ब द न्यूमेरिकल पोर्शन, यहीं पर रखते हैं यहां पर, ठीक है। सो कैपिटल लैम्डा तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहां पर ना, व्हाट इज द फॉर्मूला दैट आई विल राइट फॉर कैपिटल लैम्डा ना, कैपिटल लैम्डा इज इक्वल टू, अभी तो किए थे k into 1000 बाई क्या हो जाएगा ना सी। ना स्टूडेंट इफ आई फिल द वैल्यूज, k तुमको निकल गया है, इट इज 0.01148 into 1000 बाई क्या, कॉन्सेंट्रेशन हैज बीन टेकन एज कितना स्टूडेंट, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 0.05 मोलर। तो यहां पर डाल दो 0.05। Once you will solve it, you will get the value of lambda, आपको lambda का वैल्यू मिल जाएगा and the lambda का वैल्यू जो यहां पर आपको मिलेगा that will be student 229.6, ठीक है, साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दैट विल बी द यूनिट ऑफ लैम्डा, जो हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं। सो आई होप नो प्रॉब्लम। सो दिस इज योर न्यूमेरिकल। ये बहुत बार आ चुका है, बढ़िया से इसको कर लेना स्टूडेंट, ठीक है, खुद एक बार प्रैक्टिस कर लेना एंड ऑल्सो सॉल्व इट मैन्युअली बाय योर ओन। फाइन। सो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन दैट आई हैव टेकन। नाउ स्टूडेंट लेट अस गो टू द थर्ड न्यूमेरिकल अगेन फ्रॉम योर बुक। आपके किताब का ही वो तीसरा न्यूमेरिकल भी लेता हूं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3.4। ये वाला जो है स्टूडेंट, इट इज क्वेश्चन 3.4 इन टेक्स्ट एनसीईआरटी, इन टेक्स्ट एनसीईआरटी, ठीक है, फाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। सैकड़ों समय यही न्यूमेरिकल अलग अलग फॉर्मेट पर तुम्हारे कंपटीशन में आ चुका है और बोर्ड्स में तो आते आते थक चुका है, ठीक है। Many a times when you are going to solve the questions from your competitive level, you will find this question now and then it is coming, frequently it is coming in your exam. Now student, how this question has been proceeded, let us just go through it. I have written the numerical in a separate format manner that makes the task very very easy to understand, ठीक है। एक साथ पढ़ोगे तो एक बहुत बड़ा न्यूमेरिकल लगेगा and it will be very difficult to grasp. So therefore I have written it in this manner so that we can understand it very well. अब देखो क्या बोल रहा है, resistance of a conductivity cell filled with 0.1 molar KCl solution is 100 ohm, ठीक है। रेजिस्टेंस बोल दिया है एक कंडक्टिविटी सेल का जिसके अंदर 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन डाला हुआ है, दैट इज 100 ओम। Now student, further it is telling if the resistance of the same cell, इसी सेल, यही वाला सेल, same cell when filled with 0.02 molar KCl is 520 ohm, इसी सेल के अंदर अगर मैं 0.02 मोलर KCl डाल देता हूं तब मेरा रेजिस्टेंस हो जाता है कितना, 520 ओम, ठीक है। कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन, मतलब ये वाला वैल्यू निकालिए, कप्पा निकालिए, लैम्डा निकालिए, कब, व्हेन द कंडक्टिविटी सेल इज फिल्ड विथ 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन। दिस इज योर क्वेश्चन। गिवन kappa of 0.1 molar KCl solution is Simon per meter. Whenever student you are going to get such type of value where the unit is meter, straight away change it into centimeter.
no other option, straight away change into centimeter, so it will be 1.29. I have just now given you the conversion factor. I hope you remember the 10 to the power -2 Simon per सेंटीमीटर. सबसे पहला काम तुरंत इसको क्या कर लीजिए स्टूडेंट, ना चेंज कर लीजिए इनटू क्या, ना सेंटीमीटर. इसको सेंटीमीटर में सबसे पहला काम होगा इसको चेंज कर लेना. अब स्टूडेंट लेट मी जस्ट ड्रॉ ए डायग्राम एज यू आर ऑल फेमिलियर. I always draw diagram for the numericals that brings the numerical straight away in the mind from the textual matter. ठीक है, टेक्स्ट से वो सीधा माइंड में चला जाता है. तो ऑलवेज आई ड्रॉ सर्टेन फिगर्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. सो ये मेरा है सेम कंडक्टिविटी सेल. सेम कंडक्टिविटी सेल जहां मैंने बोल दिया क्लियर कट तुम्हारे दिमाग में चला गया कि जी स्टार इज इक्वल टू जी स्टार, दोनों के लिए सेल कांस्टेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा. एकदम स्ट्रेट कट तुम्हारे दिमाग में ये बात घुस गया. Now student I will move further. वो क्या student, now this one I am taking it as 0.1 molar KCl and this end is 0.0 molar KCl. ठीक है, फाइन. इसके अंदर ये सॉल्यूशन डाला हुआ है, इसके अंदर ये सॉल्यूशन डाला हुआ है. That has been discussed. Now let us just go further. यहाँ पर further क्या करेंगे स्टूडेंट, ना इसका K तुमको दिया हुआ है. K has been given to you as 1.29 10 to the power -2 साइमन पर सेंटीमीटर. ये तुमको दिया हुआ है यहां पर. ठीक है, फाइन. इसका तो क्या क्या निकालना है ना, आई हैव टू फाइंड के एंड लैम्डा फॉर दिस वन. बढ़िया से हो गया. नाउ स्टूडेंट व्हाट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन दैट हैज बीन गिवन, दैट इज 100 ohm. What is the resistance of this solution? It is 520 ohm. These are the things that have been given to you. ये सब चीज तुमको दिया हुआ है. Now student, as I have got from the first go that since conductivity cell is same, their cell constant will be same. Student, now just calculate cell constant from here and put it over here to get the desired answer. What will the formula that I will use to calculate this K? ना K is equal to क्या हम लोग करेंगे यहाँ पर, you are all familiar, ना G into G star. I hope no problem, fine. So G मेरे लिए क्या है ना, G is 1 by R into क्या, G star. That is the formula that I will use. Everything okay? अब स्टूडेंट 1 by R मेरे को मालूम है, it is 520 into G star. Just I have to get the G star from here. Fine. How to calculate G star? ना K is equal to again formula I will go with. ठीक है ना, K is equal to क्या हो गया ना, G into G star. स्टूडेंट G over here is 1 by R, that is 1 by 100 into क्या हो गया G star, and this value has been given to you as 1.29 10 to the power -2. I hope no problem in understanding. किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहां तक. अब स्टूडेंट जी स्टार तुमको मिल गया है यहां पर, तो जी स्टार तुम्हारे लिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. द वैल्यू फॉर जी स्टार विल बी कितना स्टूडेंट, यहां पर तुमको दिख रहा है द वैल्यू विल बी हाउ मच स्टूडेंट, दैट इज 1.29. ठीक है, अगर तुम यूनिट देना चाहो यूनिट दे दो. यहां पर इट इज एल बाई ए, दैट इज इन सेंटीमीटर इनवर्स. ये मेरा हो गया, जी स्टार का वैल्यू मेरा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं. Now I will use the value of this G star into किसके अंदर स्टूडेंट हम यूज करेंगे ना, यहां पर यूज करेंगे. तो bring this G star over here, यहां पर इसको इस्तेमाल कर दो तो वैल्यू क्या आगे बढ़ेगा ना, K is equal to 520 into G star, that is 1.29. Everything okay I suppose. हमको नहीं लगता कोई प्रॉब्लम तुमको है इसको सॉल्व करने में और समझने में. Once you solve it student, you are going to get the answer as student 2.48 into 10 to the power -3 साइमन पर सेंटीमीटर. यूनिट इज साइमन पर सेंटीमीटर. जब तुम सॉल्व करोगे तुमको ये आंसर मिल जाएगा. Satisfied? कोई दिक्कत नहीं, fine. So this is your first portion of the numerical. Once I have solved the first portion of the numerical, second portion will be very easy to understand. What is that? The calculation of what student? The capital lambda. Capital lambda मेरे लिए क्या है ना, K into 1000 by क्या, C. So 1000 K का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 2.48. because for this solution the whole thing has to be found. So 2.48 10 to the power -3 into 1000 divided by concentration, that is 0.02 है ना. concentration of this solution is this one. Once you will solve it student, you are going to get the value for this one as 124. ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ये वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा. So this is a very very important numerical from your NCERT in text portion. Okay, you can go through the numerical from your book as well. बढ़िया से इसको कर दिए हैं यहां पर, अच्छी तरीके से कर लेना. Still it comes in your competitive exam also. Just the data will be different, the values will be different. That's all. Fine. Now student, do few homework.
ओके, फ्रॉम योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो कुछ होमवर्क भी कर लेना यहां पर, ठीक है। डोंट लीव एनी क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी एक्सरसाइज से स्टूडेंट यू डू फ्यू होमवर्क, ठीक है। The question number 3.8 and 3.9 will be your homework from where student? The NCERT exercise, and rest portion I have already done. So now we have completed the task of kya? The numerical portion student. Fine. Now I will go into another concept, that is kya student? The effect of dilution. एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है, इसको तुरंत कर लेते हैं यहां पर। व्हाट इज दैट स्टूडेंट? ना इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अब ये इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का क्या करने जाएंगे स्टूडेंट? ना इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन जो जो पैरामीटर्स अभी मैंने पढ़ा है यहां पर, उस पर बातें होंगी, उस पर बातें होंगी, ठीक है। वी विल टॉक ऑन दोज पैरामीटर्स, that how dilution affects those parameters. That will be my next point of discussion. First and foremost I will discuss with kya student? The effect of dilution on number one, that I am going to do. Number one, on student kya? Na kappa. Kappa par kya mera asar hota hai? Student, for that we have to recap what was the definition of kappa. Kappa का definition क्या था student यहाँ पर? If I again make you remember, it's very simple. वो क्या था यहाँ पर? ना kappa is conductance of unit volume of solution. यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये एकदम सिंपल सा डेफिनेशन ऑफ कप्पा हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज कंडक्टिविटी, ठीक है। सो कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट, व्हाट द इफेक्ट दैट इज गोइंग टू हैपन इफ आई डाइल्यूट ए सॉल्यूशन? लेट मी राइट एट फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन। यही क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन के? तो तुमको एक लाइन का आंसर लिखना है, 1 मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट। व्हाट आंसर यू आर गोइंग टू पुट यहां पर? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, द वैल्यू of K decreases, value of K decreases upon dilution. This is your simple format. यही आप आंसर लिख दोगे, आपको मिल जाएगा। अगर रट के लिख दोगे उससे भी हो जाएगा। बट स्टूडेंट, सिंस वी आर स्टडिंग साइंस, हम इस तरीके से काम नहीं करेंगे कि रट जाओ और लिख दो। लेट अस अंडरस्टैंड स्टूडेंट, यहां पर वेरी सिंपल, बस आपको तो यही याद रखना है, बट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम वांटिंग टू से। लेट आई एम टेकिंग ए सॉल्यूशन वेयर आई एम टेकिंग स्टूडेंट 6 आयंस, ठीक है, और इसके अंदर मैं ले रहा हूं 6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन मैंने लिया और 6 आयंस मैंने लिया यहां पर। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं ना, डाइल्यूट कर दे रहा हूं। डाइल्यूट करना का मतलब क्या ना, पानी मिला दो और क्या है यहां पर, इट्स मीनिंग इज वेरी सिंपल। डाइल्यूट मैंने कर दिया यहां पर, डाइल्यूट जहां मैंने किया, नाउ अगेन 6 आयंस विल रिमेन्स इंटैक्ट। क्यों ना, मैंने यहां पर पानी ऐड किया, आई हैव ओनली एडेड वाटर इन इट, तो 6 आयंस रिमेन्स इंटैक्ट। ओनली थिंग दैट हैज बीन चेंज्ड ओवर हियर इज लेट आई हैव मेड इट एज 10 सेंटीमीटर क्यूब। लेट, मैंने इसको 10 सेंटीमीटर क्यूब मैंने बना दिया। ना स्टूडेंट, कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन आयंस, ये आयंस पर डिपेंड करता है। तुम्हारा आयंस जितना होगा उतना ही तुम्हारा कंडक्टेंस होगा, और कंडक्टिविटी भी उसी के साथ रिलेटेड है, कंडक्टिविटी भी उसी के साथ रिलेटेड है। यू आर ऑल फेमिलियर, फाइन। सो सिंस आई एम फाइंडिंग दैट कंडक्टेंस, अगर मैं बात करूंगा, सिंस आई एम फाइंडिंग नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब ओवर हियर, इसका देखो नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब कितना है, दैट इज 1 आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब। मिल रहा है? कोई दिक्कत किसी को? यहां पर अगर मैं फाउंड करूंगा, यहां पर क्या आएगा ना, 6/10, दैट इज क्या, 0.6 आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब तुमको दिख रहा है। Got the point? Fine. Now what the difference that you are going to get? Now I find that upon dilution, number of ions per centimeter cube is decreased. मेरा डेफिनेशन क्या है ना, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। हमको दिख रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन यही है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना आयंस होगा उसी पर डिपेंड करेगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना आयंस होगा उसी पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट। तो ओवर हियर आई एम फाइंडिंग 1 आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड ओवर हियर आई एम फाइंडिंग 0.6 आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब अपॉन डाइल्यूशन। बात समझ में आया यहां पर? फाइन। सो सिंस नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस, therefore student K also decreases। अगर एक लाइन जोड़ना चाहते हो इसको जोड़ सकते हो, वैल्यू ऑफ K decreases upon dilution because student number of ions per unit volume, ऐसा लिखोगे, for unit volume क्या, decreases। that's all that finishes your concept। ठीक है, फाइन। ये तो तुमको समझाने के लिए बोले हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। नाउ स्टूडेंट लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट वन स्टूडेंट। वो क्या ना, पहला हमने देख लिया नंबर 2 ऑन के, अब मैं देखूंगा ऑन क्या स्टूडेंट ना, कैपिटल लैम्डा, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। इस पर बात करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी पर बात करेंगे स्टूडेंट।
Now student, in the section of molar conductivity, I have to distribute it in two cases. What are those two cases? The case 1 will be on strong electrolyte यहाँ पर, ठीक है. Case 1 is for strong electrolyte. ये दो टाइप में बदल जाएगा, electrolyte, ठीक है. Fine. The first case I will deal with strong electrolyte and case number 2 will be dealt with क्या, weak electrolyte. क्या स्टूडेंट देखा गया यहां पर, इफ आई प्लॉट ए ग्राफ देन आई विल मेक द थिंग्स मच मोर बेटर एंड क्लियर टू यू, ठीक है. अगर मैं एक तो प्लॉट तुम्हारे लिए बनाऊं यहां पर, सो लेट आई एम ड्रॉइंग ए प्लॉट फॉर यू. दिस इज योर कैपिटल लैम्डा एंड दिस इज योर स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. मैं बताऊंगा यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्यों लिया. एंड दिस इज योर जीरो कॉन्सेंट्रेशन. ये मेरा जीरो कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन द एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर कैपिटल लैम्डा. फाइन. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या होना चाहिए था स्टूडेंट, ये मैं तुमको बताता हूं यहां पर क्या होना चाहिए था ना. सिंस स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल NaCl, KCl वगैरह, जहां तुम पानी में डालोगे, जहां तुम इन लोगों को पानी में डालोगे स्टूडेंट, ये तुरंत 100% क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा. एंड अगेन स्टूडेंट, दिस कैपिटल लैम्डा ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन आयंस. ये भी आयंस पर डिपेंड करता है, लेकिन फर्क क्या है यहां पर ना, वॉल्यूम का कोई मैटर नहीं है. देयर इज नो मैटर ऑफ वॉल्यूम इन इट. एक ही चीज केवल लैम्डा डिमांड करता है. व्हाट इज दैट स्टूडेंट ना, द सॉल्यूशन शुड हैव 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट. एक ही चीज वो डिमांड करता है, द सॉल्यूशन शुड हैव 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट. अब वॉल्यूम जो मर्जी कीजिए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है. फाइन. दैट वी हैव ऑलरेडी नोन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर. नाउ स्टूडेंट, इफ आई टेक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो तुम जहां पानी में डालोगे वो 100% आयनाइज हो जाएगा. मतलब नंबर ऑफ आयंस आपको शुरू में ही जो रहेगा, पानी मिलाने के बाद भी वही रहेगा, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन. तो पानी भी मिलाओगे, नंबर ऑफ आयंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी डिसोसिएटेड 100% वंस इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. जहां पानी में डाले हैं 100% वो टूट चुका है इनटू इट्स रेस्पेक्टिव कैटायंस एंड एनायंस, और आयंस का बढ़ोतरी नहीं होगा. तो फिर मेरा ग्राफ कैसा आना चाहिए था, विद डाइल्यूशन की. मैं पानी मिलाए जा रहा हूं यहां पर, विद डाइल्यूशन क्या आना चाहिए था स्टूडेंट यहां पर. ये देखो कॉन्सेंट्रेशन इधर है, गौर करो. तो ग्राफ अगर मैं ऐसा खींचूंगा, इस तरीके से खींचूंगा यहां पर, तो इधर से गौर करना स्टूडेंट, इधर से इधर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है. in this direction concentration is increasing. In this direction concentration will decrease. In this direction concentration will decrease. कोई दिक्कत नहीं. तो concentration decrease मतलब ये मैं बोल सकता हूं कि dilution increase. इन दिस डायरेक्शन डाइल्यूशन इज इंक्रीजिंग. तो डाइल्यूशन पर आंसर करना ज्यादा आसान है, ठीक है. फाइन. तो इधर मैं अगर बनाऊंगा मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज. गॉट द पॉइंट. फाइन. तो डाइल्यूशन जैसे जैसे मेरा बढ़ रहा है, मेरे को क्या आना चाहिए था ग्राफ ना, देयर शुड बी नो चेंज इन लैम्डा. मेरा ग्राफ आना चाहिए था क्या, वो देखो स्टूडेंट, जस्ट लाइक दिस. मेरा ग्राफ आना चाहिए था इस तरीके का. इट शुड बी पैरेलल टू दिस एक्सिस. इस तरीके से पैरेलल टू दिस एक्सिस होना चाहिए था. यही मेरा ग्राफ होना चाहिए था यहां पर, ठीक है. क्यों ना, आयंस तो जितना मिलना था वो मिल गया. I have got the number of ions. Let this is for 1 molar KCl solution. ये मैं मान लेता हूं कि 1 molar KCl solution के लिए. तो हमको जो ग्राफ में मिलना चाहिए था वो तो हमको मिल चुका है. आयंस जितना मिलना चाहिए था वो मेरे को मिल चुका है यहां पर. दिस इज 1 मोलर, ठीक है. 1 मोलर का मतलब क्या है ना, 1 मोल ऑफ KCl इन 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन में. तो लेट दिस इज योर कैपिटल लैम्डा एट दिस कॉन्सेंट्रेशन. अब स्टूडेंट मैं पानी मिला रहा हूं, मेरे को कोई चेंज नजर नहीं आना चाहिए था लैम्डा में. कोई चेंज नजर नहीं आना चाहिए लैम्डा में. क्यों ना, नंबर ऑफ आयंस तो मेरे लिए क्या है, सेम है, फिक्स्ड है. बट स्टूडेंट द ग्राफ इज लिटिल बिट लाइक दिस. ग्राफ जो तुमको मिलेगा वो देखो, ध्यान से देखना स्टूडेंट, ठीक है. उम्मीद है मैं दिखा पा रहा हूं तुम लोग को. ग्राफ तुमको मिलेगा ए स्लाइट इंक्रीज इन द ग्राफ इज नोटिस्ड. A slight increase in the graph is noticed. यहां पर स्लाइट इंक्रीज तुमको नोटिस करने को मिलेगा यहां पर. और ये स्लाइट नोटिस क्यों आया यहां पर, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आएगा, सर व्हाई दिस स्लाइट इंक्रीज इज फाउंड, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इज फिक्स्ड एट दिस कॉन्सेंट्रेशन एंड एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन. जीरो कॉन्सेंट्रेशन में जो आयंस है वही कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर में भी है सर. तो फिर ये बढ़ कैसे रहा यहां पर ना, स्लाइट इंक्रीज. यहां लिख दे रहा हूं स्टूडेंट, स्लाइट increase in capital lambda with dilution is due to increase in ionic
मोबिलिटी इज ड्यू टू इंक्रीज इन क्या, आयनिक मोबिलिटी, मूवमेंट ऑफ आयंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बढ़ जाएगा, इज ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी, ये हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर ये क्या चक्कर हुआ, ये क्या बोल रहा है इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी, व्हाट यू वांटेड टू से टू दिस वन यहां पर बाई सेइंग इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी। स्टूडेंट वेरी सिंपल स्टूडेंट, यहां पर 1 मोलर जहां मैंने लिया KCl का, तो जितना हमको आयंस मिलना चाहिए था वो यहीं पर मिल गया। लेकिन स्टूडेंट जैसे जैसे पानी में बढ़ाते चले जाऊंगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जीरो कॉन्सेंट्रेशन मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जीरो कॉन्सेंट्रेशन मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसे जैसे मेरा ये बढ़ जाएगा यहां पर, ठीक है, फाइन, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उस तरीके से स्टूडेंट तुम्हारा क्या होगा ना, इंटरएक्टिव फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन becomes completely nil। एक कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है ना, नील हो जाता है। क्यों ना, ये आयंस एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं, सिंस द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैज बिकम वेरी लार्ज, बहुत दूर चले जाते हैं। एंड जहां ये दूर चला जाएगा स्टूडेंट, यहां पर देयर विल बी नो इंटरएक्टिव फोर्स, देयरफॉर एक दूसरे के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से जुदा होकर ये आयंस फ्रीली क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे, फ्रीली ये क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। देयरफॉर द टर्म गोज ड्यू टू इंक्रीज इन क्या, आयनिक मोबिलिटी, ड्यू टू इंक्रीज इन क्या, आयनिक मोबिलिटी। सो दिस इज योर केस। अब मैं ग्राफ को फ्रेश बना देता हूं स्टूडेंट, ठीक है, फ्रेश ग्राफ तुम लोग बना लेना, यहां पर समझाने के लिए वो किए थे, तो तुम्हारे लिए अब ग्राफ क्या आ जाएगा, एक फ्रेश ग्राफ बना लीजिएगा, लाइक दिस, इधर लैम्डा ले लोगे, ठीक है, इधर अंडर रूट C ले लोगे, ये नील ले लोगे स्टूडेंट, एंड द ग्राफ विल बी लाइक दिस, इस तरीके से करके छोड़ दीजिएगा। 1 मोलर KCl ये देखें, ठीक है, दिस इज योर 1 मोलर, फाइन, आई होप नो प्रॉब्लम। यहां पर टच अभी मत करना, इसको डिस्कस करना यहां पर, ठीक है, दिस इज योर आइडिया। तो ये इंक्रीज तुमको दिखाने के लिए यहां पर मैंने किया था। सो उम्मीद है यू हैव गॉट द ग्राफ, हाउ इट विल बी फॉर क्या, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फाइन, आई होप नो प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट हम लोग चले जाएंगे यहां पर इनटू व्हाट स्टूडेंट, यहां पर ना वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करेंगे। यहां पर वी विल टॉक फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होने जा रहा है। तो केस 2 में जल्दी से चले जाओ स्टूडेंट, व्हाट विल बी माय केस 2, लेट अस टॉक अबाउट केस 2, एंड केस 2 विल बी व्हाट स्टूडेंट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो चलो देखते हैं यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विथ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, फाइन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्टूडेंट मेरा क्या होने वाला है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, अगेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ यहां पर, ठीक है। तो ग्राफ को फिर से मैं बनाता हूं यहां पर और देखता हूं कि क्या मेरा होने जा रहा है, ठीक है, फाइन। सो दिस इज योर लैम्डा, दिस इज योर रूट C, दिस इज योर 0। वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या चक्कर है ना स्टूडेंट, जहां तुम पानी में डालोगे ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा, एंड लेट दिस इज योर 1 मोलर एसिटिक एसिड, लेट इट इज 1 मोलर एसिटिक एसिड, ये वाला पॉइंट मेरा 1 मोलर है, ठीक है, फाइन। ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा सिंस इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट जैसे जैसे मैं डाइल्यूट करते चले जाऊंगा, इसका आयनाइजेशन भी बढ़ते चला जाएगा, एज टोल्ड बाई ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड ने ये बात बोला है फ्रॉम इट्स फेमस ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, कि एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन the ionization of weak electrolyte will go on increasing। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, as you increase dilution the ionization या dissociation of weak electrolyte goes on increasing, ठीक है, फाइन, it has been discussed told by Ostwald dilution law। तो जैसे जैसे मेरा आयनाइजेशन बढ़ जाएगा स्टूडेंट, उस तरीके से आयन्स भी बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ आयन्स भी बढ़ जाएंगे। तो पहले देखो इसका लैम्डा काफी नीचे है, लेकिन जैसे जैसे मेरा बढ़ेगा आयोनाइजेशन, नंबर ऑफ आयन्स बढ़ते जाएगा, तो मेरा ग्राफ इस तरीके से पीक राइज करेगा, राइज करेगा, राइज करेगा, एक सर्टेन स्टेज पर आके ये कांस्टेंट हो जाएगा, इस तरीके से एक सर्टेन स्टेज पर आके ये कांस्टेंट हो जाएगा यहां पर, और तुम्हारा इंक्रीज इन लैम्डा नहीं होगा विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। I hope you have understood the graph very well, ठीक है, फाइन, I hope no problem in understanding, क्लियर हो गया, फाइन। अब स्टूडेंट ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन हल्का सा मैं बता देता हूं, बहुत सारे जिज्ञासु स्टूडेंट है कि सर ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं इस ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से। तो स्टूडेंट मैं यहां पर कर दे रहा हूं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, समझने की कोशिश करना स्टूडेंट। लेट दिस इज माई वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेट दिस इज माई वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, फाइन। दिस इज योर CH3COO माइनस और H+, कोई दिक्कत नहीं, आयनिक इक्विलिब्रियम तुम लोग पढ़े हो, कोई नई बात नहीं है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज, ठीक है, 1 लेता हूं, लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन 1, तो इसका क्या होगा 0 और 0। नेक्स्ट स्टूडेंट
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर ये अल्फा है तो ये होगा प्लस अल्फा एंड प्लस अल्फा। अगर मेरा वैल्यू एट इक्विलिब्रियम क्या आएगा ना 1 माइनस अल्फा, ये क्या होगा 0 प्लस अल्फा, 0 प्लस अल्फा। आई होप नो प्रॉब्लम, क्लियर, फाइन। एट इक्विलिब्रियम हो गया, इनिशियल इज 1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, एट इक्विलिब्रियम इज दिस। और अगर मेरा कॉन्सेंट्रेशन सी रहा, अगर मेरा कॉन्सेंट्रेशन सी रहा तो यू आर ऑल फेमिलियर, हम लोग क्या करते हैं, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूं। अगर मेरा कॉन्सेंट्रेशन सी रहा देन इट विल बी लाइक दिस। सब जानते हो, आयनिक इक्विलिब्रियम में तुमने सब पढ़ा है, यहां पर कोई नई बात नहीं है ना स्टूडेंट। Ka equilibrium constant will be active mass of CH3COO minus, that is concentration, ठीक है, H plus divided by क्या हो गया CH3COOH। आई होप नो प्रॉब्लम। सो CH3COO minus मेरे लिए क्या आया ना C अल्फा, ये क्या आया C अल्फा, ये क्या आया C अल्फा, दिस इज योर K। एवरीथिंग ओके ना स्टूडेंट, कैंसल आउट दिस C, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट ना। अगर मेरा एसिड बहुत ही वीक है, अगर क्या वीक है ही तो है, यहां पर एसिडिक एसिड तुम लोग खाते हो लपर लपर, ठीक है, चाइनीज फूड के साथ, तो देयरफॉर स्टूडेंट इट्स अ वीक एसिड, यू आर ऑल फेमिलियर। तो फिर अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू 1, अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू 1। तो मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, मैं आराम से ऐसा लिख सकता हूं, दैट विल बी C अल्फा स्क्वायर। क्लियर हो गया, अल्फा इज नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू 1, तो C अल्फा स्क्वायर बचा। तो फिर नेक्स्ट लाइन में देखो, ध्यान से देखना स्टूडेंट, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, देखो ध्यान से स्टूडेंट ना, KA/C अंडर रूट, नजर आ रहा है। तो व्हाट यू कैन गेट फ्रॉम हियर, देखो ध्यान से अब देखना स्टूडेंट, यहां पर ना मेरे को मिलेगा अल्फा, ठीक है, ये कांस्टेंट है, दिस इज योर कांस्टेंट, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट ना अंडर रूट C। बोलो समझ में आया, तो इट कैन बी रिटन एज अल्फा प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया स्टूडेंट ना अंडर रूट C। और स्टूडेंट अल्फा का रिलेशनशिप ये अंडर रूट C के साथ आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल इंक्रीज एज द कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल इंक्रीज एज द कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा डिक्रीजेस, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस मतलब डाइल्यूशन इंक्रीजेस, डाइल्यूशन इंक्रीजेस, तब तुम्हारे लिए क्या हो गया ना, एज द डाइल्यूशन इंक्रीजेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आल्सो क्या इंक्रीजेस। आई होप यू हैव गॉट इट। तो दिस इज योर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये भी एक कारण है स्टूडेंट, ये भी एक कारण है टू टेक दिस x axis एज क्या रूट C, ये भी एक कारण है। वन मोर रीजन इज देयर, बट दिस इज आल्सो ए रीजन व्हाई आई हैव टेकन रूट C ओवर हियर। आई होप दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू एज वेल। तो यहां तक का मेरा काम हो गया। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, यहां पर आगे डिस्कस करते हैं कि क्या डिस्कशन यहां पर करेंगे स्टूडेंट ना। शुरू करो ना, ये विथ डाइल्यूशन ये धीरे धीरे क्या हो गया ना, बढ़ गया, लेकिन एक स्टेज पर जाके कांस्टेंट हो गया। ऐसा क्यों हो गया स्टूडेंट, यहां पर वाई कांस्टेंट, इट रीच्ड कांस्टेंट ओवर देयर, तो उसके बारे में लिखिए यहां पर, एक दो पॉइंट लिखो यहां पर, ठीक है, फाइन, लिखो नंबर 1 लिखो यहां पर, क्या डिस्कशन हमको ग्राफ से मिलता है, लिखिए, मैं बोल दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, यू राइट इट स्ट्रेट अवे, लिखिए with increase in dilution, this is number 1 point, लिखो with increase in dilution, ठीक है, capital lambda of weak electrolyte, capital lambda of weak electrolyte increases, capital lambda of weak electrolyte increases and becomes constant, ठीक है, after certain dilution, and becomes constant after certain dilution, got the point, fine, due to 100%, due to 100% dissociation of, due to 100% dissociation of weak electrolyte, due to 100% dissociation of weak electrolyte, ठीक है, फाइन। नंबर 2 में ये पॉइंट भी डालिए, फर्दर क्या हो जा रहा है स्टूडेंट, फर्दर increase in ionic mobility, further increase in ionic mobility, ठीक है, at large dilution is also the cause of steep rise, is also the cause of steep rise in plot, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। सो दैट फिनिशेज योर कॉन्सेप्ट ऑफ क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट। नाउ स्टूडेंट आई वांट टू प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हियर ओनली। यहीं पर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को फिर से प्रेजेंट करना चाहूंगा, क्यों ना एक नया कॉन्सेप्ट को यहां पर लाना है। वो क्या ना, जस्ट ना आई हैव गॉट द ग्राफ
फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज समथिंग लाइक दिस। अगर याद होगा मैंने बनाया था, हल्का सा इंक्रीज करके मैंने इस तरीके से बनाया था और मैंने बोला था देखो ये मेरा 1 मोलर KCl। तो स्टूडेंट अगेन देखो ये भी मेरा 1 मोलर CH3COOH, ये भी मेरा 1 मोलर, लेकिन देखो कंडक्टेंस हाई है एट द सेम कॉन्सेंट्रेशन। कंडक्टेंस इज सॉरी मोलर कंडक्टेंस इज या मोलर कंडक्टिविटी इज हाई फॉर क्या स्टूडेंट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो वही सेम कॉन्सेंट्रेशन बट मोलर कंडक्टिविटी इज मच मच मोर ग्रेटर in case of strong electrolyte। that is easily visible and understood why ना ions बहुत ज्यादा रहेगा, initial point से ही ion बहुत ज्यादा रहेगा। now student there is one more term that is related over here, that is क्या student ना limiting molar conductivity। limiting molar conductivity, ये limiting molar conductivity मोरे लिए क्या है स्टूडेंट ना, इसका सिंबल पहले समझ लो ना, इट सिंबल इज कैपिटल लैम्डा नॉट। ये है मेरा इसका सिंबल। दिस नॉट रिप्रेजेंट्स जीरो कॉन्सेंट्रेशन, दिस नॉट रिप्रेजेंट्स जीरो कॉन्सेंट्रेशन। कोई कोई बुक में तुमको ये भी मिलेगा लैम्डा इन्फिनिटी। लैम्डा इन्फिनिटी मीन्स क्या, नॉट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आई होप यू हैव गॉट इट। तो इसका क्या होगा डेफिनेशन स्टूडेंट, वेरी सिंपल। यहां पर व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्या इसका डेफिनेशन होगा यहां पर ना, लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं डेफिनेशन लिखो, चलो लिखो, यहां पर बोल दे रहे हैं इट इज मोलर कंडक्टिविटी, इट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है ना, इट इज मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। इट इज मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ब्रैकेट में और एक टर्म लिख सकते हो, ब्रैकेट में और एक टर्म लिख सकते हो, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सेटिस्फाइड एवरीबॉडी? डेफिनेटली सेटिस्फाइड। तो डेफिनेशन भी मेरा हो गया, आई होप यू हैव गॉट इट। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट में लिखो स्टूडेंट हाउ टू कैलकुलेट लैम्डा नॉट। ये लैम्डा नॉट को मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा, यहां पर कैसे करूंगा ना, केस 1 ना फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम कहां से स्टूडेंट ना, फ्रॉम ग्राफ। अब ग्राफ से ही उसको कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। कैसे, देखो स्टूडेंट, जस्ट एक्स्ट्रापोलेट दिस ग्राफ। इस ग्राफ को केवल एक्स्ट्रापोलेट कर दीजिए, स्टूडेंट। द पॉइंट वेर इट टचेस दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट। जीरो कॉन्सेंट्रेशन में मोलर कंडक्टिविटी, दैट पॉइंट विल बी लैम्डा नॉट। तो ये एक्स्ट्रापोलेशन करेंगे, मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट मिल जाएगा। उम्मीद है सबको समझ में आया कैसे मैंने किया, जस्ट एक्स्ट्रापोलेट द ग्राफ। बट स्टूडेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्टूडेंट यहां पर ना प्लॉट से नहीं होगा, ग्राफ से आपका कैलकुलेशन नहीं होगा। फॉर क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों ना, ये ग्राफ तो कांस्टेंट होके इंफिनिटी टच कर गया यहां पर। इट इज गोइंग पैरेलल टू लैम्डा, वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया यहां पर। ठीक है, फाइन। सो देयरफॉर आई कांट कैलकुलेट या डिटरमाइन द लैम्डा नॉट ऑफ क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता हूं। तो इसका डिटर्मिनेशन कहां से होता है स्टूडेंट, यहां पर ना वी हैव टू स्विच फॉर, किसके लिए हमको जानना होगा स्टूडेंट, हमको देखना होगा क्या यहां पर ना, उसके लिए हमको जानना होगा एक लॉ जिसका नाम है स्टूडेंट क्या ना, कोलरॉ लॉ। ये हमको जानना होगा टू कैलकुलेट लैम्डा नॉट फॉर क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फाइन। सो फॉर दैट वी हैव टू वेट फॉर द थर्ड लेक्चर। हम लोग को इंतजार करना होगा तीसरा लेक्चर के लिए टू नो दिस कोलरॉ लॉ एंड टू कैलकुलेट लैम्डा नॉट ऑफ क्या, यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वन मोर थिंग दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द ग्राफ, वो क्या स्टूडेंट, यहां पर नाउ एक इक्वेशन फॉर दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक इक्वेशन स्टूडेंट निकाल के डाला हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी में, केवल उसको जानकारी रखना स्टूडेंट। इट्स अ बिग डेरिवेशन टू गेट दिस इक्वेशन फॉर दिस लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन कर्व है, तुमको दिख रहा है यहां पर, एंड द इक्वेशन फॉर दिस स्ट्रेट लाइन कर्व गोज एज द लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, -a√c, ठीक है, प्लस लैम्डा नॉट। ये वाला इक्वेशन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिस्कशन था थोड़ी देर पहले। दिस इज द इक्वेशन फॉर क्या, यहां पर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये इक्वेशन का नाम है स्टूडेंट यहां पर डीबाई हकल, ठीक है, ओन सागर, ठीक है, ओन सागर इक्वेशन, इसका नाम है डीबाई हकल ओन सागर इक्वेशन। तो अभी जानने की कोई जरूरत नहीं है, ये केवल इक्वेशन याद रखिएगा। एनसीईआरटी में इंट्रोड्यूस किया गया है ये इक्वेशन स्टूडेंट, केवल याद रखिएगा।
लैम्डा वाई एक्सिस दिख रहा है, ठीक है, इट्स ए नेगेटिव स्लोप, ये भी दिख रहा है, माइनस रूट सी एक्स एक्सिस लैम्डा नॉट, इसको जहां एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे, अभी सीखा है, एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, लैम्डा नॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये हमको मिल जाएगा, अभी मैंने बात किया। तो दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर क्या, किसके लिए केवल वैलिड रहेगा, ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए केवल ये वैलिड रहेगा यहां पर। एंड व्हाट इज दिस ए स्टूडेंट, ना ए इज ए कांस्टेंट, ए मेरे लिए क्या है, कांस्टेंट है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो दिस इज योर आइडिया of strong electrolyte and an equation for that one, lambda naught for strong electrolyte, that can be easily calculated by extrapolation, but lambda naught for weak electrolyte can't be obtained from graph, ठीक है, therefore we have to know a law to determine it, that is called Colero law, by with which we will meet in the third lecture. Till then student, stay safe and thank you for attending today's class.